Hi to both the toppers. First of all, I am very grateful and thankful to Jatin and Mukund that they took very important time of their life in giving this Success Carnival. This is an annual exercise which is guided by Dr. Khan sir. And in this, what we do is we try to collect some pearls of wisdom from you. Like you are one of the successful candidates in this exam, and so this exam is a sort of inspiration to many students. So what strategies worked out for you? आप कैसे इसको अपने life में convert कर पाए? And what are the challenges you faced? We are going to talk about that. So let me start my first question with Jatin. What was the reaction when you saw your name in the PDF? Are you expecting this rank or this high rank? Sir, my exams ultimately देखा जाए तो मेंस एंड इंटरव्यू वाज डिसेंट इनफ सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि यार लिस्ट में नाम तो आ जाना चाहिए. But when the result came, I just scrolled to the PDF and searched my name. It was unbelievable. I never expected such a good rank because it was my first mains and first interview. So I never expected such a good rank. So when I saw my name, I rechecked it thrice of 3 or 4 times to confirm it. Yeah, it is me only. So and then the feeling was just awesome. I can't express it in words, sir. Amazing This feeling is it was. very common indeed that people check. They do not believe like this is me. So Yes, sir. I mean ये लोगों को समझना चाहिए कि टॉपर्स को भी लगता है कि this is very uncertain. क्या ये मेरा नाम है? Yes, चलिए, sir. very good. Thank you. Uh, Mukund, like I want to ask specifically because why do you choose this career option as a civil servant? Because from the sources and information, I got information about you that you are a very good cricketer as well. तो आपने क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुझान किया? Can you enlighten the students about this? जी सर, बिल्कुल. सर, जैसे कि कहते हैं कि हॉबीज और पैशन में थोड़ा डिफरेंस होता है. तो मेरी हॉबीज बहुत सारी हैं. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है काफी. बट सिविल सर्विसेज का मेन रीजन एक तो यही था कि आई फेल्ट कि इट वुड गिव मी द सेटिस्फैक्शन. काफी अच्छा काम करने को मिलता है. दूसरा, मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं. तो ये दोनों फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे उस तरफ भेजा. बाकी हॉबीज का तो ऐसा है कि आई होप कि मैं परस्यू करता रहूंगा उन्हें हमेशा. मतलब क्रिकेट चलता रहेगा सिलेक्शन के बाद भी? बिल्कुल बिल्कुल सर जी. ओके. आई होप आप दोनों ने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा. इट वाज लिटिल अनप्रेसिडेंटेड अकॉर्डिंग टू मेनी एक्सपर्ट्स, but I think prelims is one exam which has become tougher and tougher day by day. So my first question to Jatin about the prelims is that looking at the present context of the paper, don't you think that now aspirants need to mug up more facts, they need to be more precise, and sort of the kind of benefit of doubt they used to get is little weaker. So what suggestion you want to give to the aspirants कि अब इस तरीके के prelims में they should not lose hope and और बेहतर करें? So what suggestion you can give? Certainly, sir. I have also attempted this year prelims examination again. So I gave the paper. So the feeling was sure कि आप क्या क्या कर रहा है यूपीएससी. It was so unpredictable, so difficult paper to see. But on the same side, sir, UPSC has changed its way of asking the questions, but the ideology of UPSC remains the same. If you without पहनेगा बिना पहने के एक अपना कामनेस मेंटेन कर सकते हो 2 घंटे में तो आपका फ्री निकल जाएगा. क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछे अगर आप उसको देखोगे तो सारे पीवाईक्यूज के ऑप्शंस में से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. चाहे वो प्रेजेंट वाला बनाया हो, चाहे वो विजयनगर वाला बनाया हो, चाहे पोर्ट्स वाला बनाया हो. तो अल्टीमेटली इट्स अ मिक्स ऑफ इजी क्वेश्चंस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड मॉडरेट क्वेश्चंस. इस बार वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस का रेशियो बहुत इंक्रीज कर दिया यूपीएससी ने. लेकिन जो यूपीएससी की आइडियोलॉजी है या यूपीएससी का जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, अगर कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ रहे हो, सोमालिया वाला, फेमिन वाला, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, प्लेसिस न्यूज वाले, सारे न्यूज़पेपर से आए थे. जिसने भी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा उसको बेनिफिट हुआ होगा. एंड सेकेंडली पीवाईक्यूज. सर, what is the trend in the market is to solve as many mock paper as they can. ये अपने 50-60 को मॉक पेपर कर लिया, एसजी का भी कर लिया, विजन का भी कर लिया, इनसाइट का भी कर लिया, एक्स का कर लिया, वाई का कर लिया, बट दे डोंट फोकस ऑन द पीवाईक्यूज. तो अगर आप पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं करोगे तो
आपको हमेशा यूपीएससी सरप्राइजिंग ही लगेगा, लेकिन अगर पीवाईक्यूज पे फोकस करोगे तो आपको लगेगा लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने 8 और 10 क्वेश्चन जैसे पूछे थे पेयर वाले। उसके बाद सीडीएस और जो सीएपीएफ के एग्जाम्स हुए थे वहां भी सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस थे। तो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस ईयर, बट द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस वाज वेरी हाई, सो दैट enlarged द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो अब स्ट्रेटेजी वही रहेगी, आप अपना जो प्रोसेस है उसको ही मेंटेन कीजिए, अपने सोर्सेज को लिमिट कीजिए, मल्टीपल रिविजन कीजिए, रादर देन गोइंग फॉर फैंसी थिंग्स स्टार्ट डूइंग वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच इज नेसेसरी इन दिस एग्जामिनेशन। और पीवाईक्यूज को बेस बना के ही करना पड़ेगा ऑन दिस। Very aptly summarized by Jatin. लोगों को जो डर लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए. He's हाँ very rightly pointed out that PYQs are the guiding light. Let me trace out a small thing related to Ramayana. In Ramayana as well, when Lord Rama was hitting Ravana over his head again and again and again, then Vibhishan told him that Amrit Kundi kahin aur hai. So हाँ I think that Amrit Kundi is PYQs, and very categorically Jatin has already mentioned कि वो क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल, सॉरी, जो उसके ऑप्शन है उससे भी फ्रेम कर रहा है, पैटर्न भी सेम है। तो मेरे ख्याल से इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ। पेपर बहुत वैसा है। जो इन्होंने कहा है 2 बार कि आप अगर कामनेस के साथ पेपर करेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्किंग आउट इन योर फेवर. यस सर। Very good answer, Jatin. I appreciate this. थैंक यू। Now, since Mukund has more experience, I believe, in giving prelims. तो मुकुंद, मेरा आपसे क्वेश्चन है prelims के कॉन्टेक्स्ट में कि those students who at least try to juggle up with their studies of the general studies, now they are struggling more on clearing the CSAT. So, what you suggest to the aspirants कि CSAT में पैनिक नहीं करें और CSAT को कैसे डील करें? जैसे जतिन ने तो जीएस का बड़ा अच्छा स्वीट एंड काम आंसर बताया है, छोटा सा, कि क्या करना चाहिए आपको। आप CSAT में कुछ बता सकते हैं बच्चों को कि व्हाट इज गोइंग टू हेल्प देम इन देयर फेवर? हाँ जी सर, बिल्कुल। सर, क्योंकि मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था 12th तक, तो सीसैट से रिलेटेड मुझे उतना कभी स्ट्रगल नहीं फील हुआ। बट इन जनरल मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जैसा जतन जी ने कहा कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली सीसैट में इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आई डोंट थिंक कोचिंग्स रेप्लिकेट कर पाती हैं सीसैट के क्वेश्चंस या उनके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस। तो सीसैट के क्वेश्चन पेपर्स पिछले 5 या 10 साल के जो हैं वो एक बहुत वैल्यूएबल मटेरियल हैं। तो मेरा जनरली, क्योंकि मैंने मेंटरशिप भी की है अंडर प्रिविलेज्ड एस्पिरेंट्स के लिए, तो मेरा उनको यही सजेशन रहता था कि आप फिक्स टाइम में, जो 2 घंटे का पेपर जनरली होता है, उस टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, करिए उसे। उसके बाद अपने मार्क्स टैली कीजिए। उसके बाद ही असेसमेंट कीजिए कि आपको सीसैट में कितनी रिक्वायरमेंट है काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 100, देन मे बी यू डोंट नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीसैट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। आपको ज्यादा एफर्ट तो जीएस में ही करना है मेरिट में आने के लिए। बट अगर आप बाउंड्री पे हैं या आपके कम आते हैं, तो वहां से फिर आपका एफर्ट डालना आपको शुरू करना पड़ेगा। एफर्ट में भी आई वुड से कि आप किसी एक सेक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैथ्स थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जनरली, अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आते हैं वो सही आंसर। बट उसमें भी फिर कभी, जैसे इस बार मैंने जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो सिर्फ मैथ्स पे भी आप भरोसा ना रखें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा सबका ही पोर्शन कवर करके जाएं, ताकि कोई भी एक सेक्शन के क्वेश्चन कम हो जाए या डिफिकल्टी बढ़ जाए तो आप फिर भी ओवरऑल पेपर क्वालिफाई कर जाएं। बाकी अटेम्प्ट्स के भी एक माइंड में लेके चलें कि अटेम्प्ट्स कितने करने हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मेरा जनरली कोशिश रहती थी कि 50 के आसपास मैं करूं तो मेरा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो वो तब आता है जब आप मॉक सीसैट दे चुके हों। अगर आपने 3-4 मॉक दिए होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस रेंज में कंफर्टेबल हूँ, कहाँ पे मैं क्लियर कंफर्टेबली कर लेता हूँ सीसैट। तो ये 2-3 चीजें मैं सजेस्ट जरूर करूंगा। You pointed out very well that you need to have a blend of reading comprehension, reasoning, and mathematics, because sometimes I have also visualized students that they rely on only reading comprehension, and when they match their answer keys, then they find something not very good for them. So good advice to all the aspirant कि वो mathematics को भी उतना ही कोशिश करें, कुछ units पे कम से कम काम कर लें। और बहुत साइंटिफिक असेसमेंट मुकुंद ने यहाँ पर करा है कि आप पहले पेपर देके देखें कि व्हाट आर दी डेप्थ ऑफ वाटर, आर यू एबल टू टेक आउट योर हेड आउट और नॉट, और उसके बाद फिर एरिया आइडेंटिफाई करें। वो बिल्कुल ब्लाइंडली शुरू नहीं करें,
क्योंकि at the end of the day you just need to score 33%, which is difficult because people are totally ignoring it. And that's why I think practicing, and the best source definitely he says that UPSC CSE's comprehensions, but I can also suggest कि आप CDS के जो comprehension होते हैं अगर वो भी हाँ करेंगे तो they will also help, बिल्कुल because I बिल्कुल believe UPSC impanel the same people for जी सर हम्म making these things. A very good answer, I mean, I must say. और KSG ने भी एक बीच बीच में एक जो जतिन ने कहा वैसी चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर खान ने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, PT डायग्नोस्टिक टेस्ट. इट इज व्हाई आई एम टेलिंग यस यू बिकॉज सर इट इज कनेक्टिंग विद द कॉन्टेक्स्ट. यस उसमें सर KSG is trying to give you a sort of केवल एक रिपोर्ट कार्ड कि आपका हमने ब्लड सैंपल लिया एंड दिस इज द प्रॉब्लम इन यू. आपको इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आ रही है, आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज में आप गलत कर रहे हैं. तो उससे स्टूडेंट को एक एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है कि विच एरिया नीड्स टू बी डन. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लीप ऑफ दिस थिंग. मेरा एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जतिन ने बहुत अच्छी बात बोली है, और सॉरी मुकुल ने, कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है. जैसे कि इन्होंने कहा है कि क्रिकेट में होता है ना कि आपको अगर बाउंसर आ रही तो हर बार जरूरी नहीं है कि सूर्य कुमार यादव की तरह आपको अपर कट मारना ही है. समटाइम्स यू नीड टू डग इट. तो वहां पर अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ है तो पे रिस्पेक्ट टू दोस क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द मेंस, व्हिच इज द मेन बेडरॉक ऑफ the UPSC civil services examination. Mains के context में I want to start with Jatin you that students often struggle to get good marks in ethics, and the reason is that there are many reasons. Either they ignore or not proper resources are available, या concrete कुछ नजर नहीं आता है. तो can you tell what worked in your favor, Jatin, as far as in GS mains paper 4 is concerned, ethics? यस सर. सर इन माय ओपिनियन एथिक्स इज मतलब बहुत ही अच्छा पेपर है. वहाँ पे बहुत ज्यादा सिलेबस आपको याद नहीं करना. वहाँ पे आपका खुद आप अपने सेल्फ को रिप्रोड्यूस कर सकते हो. GS 1 to 3 में क्या होता है, अब बहुत आपने पढ़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपको वही प्रोड्यूस करना होता है. बट एथिक्स में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, एंड दैट इज द मेन थिंग अकॉर्डिंग टू मी विच वर्क्स इन वंस फेवर इन एथिक्स. क्या आप अपना यूनिकनेस कितना ज्यादा दिखा सकते हो. एथिक्स में आपको सिर्फ एक होना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज सिलेबस में दी हुई है सारे वैल्यूज को एक जगह लिख लीजिए, उनकी डेफिनेशंस आप बना लीजिए अच्छी सी, ताकि वो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ही काम आती है. फिर उसके बाद अल्टीमेट द गेम इन एथिक्स इज ऑफ एग्जांपल्स. आप जितना अच्छा एग्जांपल्स क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज एथिक्स में क्या होगा, आप छोटे छोटे एग्जांपल्स भी लिखेंगे ना, एग्जामिनर उससे कनेक्ट कर पाता है. ऑनेस्टी के भी अगर आपने छोटे से एग्जाम्पल लिख दिया, तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से लिखो या किसी पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल से लिखो, तो वो उतना ही ज्यादा एनरिचिंग आपके आंसर को कर देता है. फिर अल्टीमेटली आप डाइवर्स फील्ड में जाइए, इतना डाइवर्सिटी में जाएंगे कि एक रिलीजियस एग्जाम्पल लिखा, फिर एक अपने सोशल एग्जाम्पल लिखा, फिर एक अपन एथिकल एग्जाम्पल लिखा, फिर स्पोर्ट्स का लिखा, फिर कुछ का लिखा. तो दैट शोज यू आर अटेंटिव, यू नो द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन रियल लाइफ. So that is the main key. And for section B, case study is just about practice. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ केस स्टडी, उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज यूपीएससी इज रिपीटिंग द सेम थीम इन द, जैसे अपन प्रीलिम्स से बोल रहे हैं पीवाईक्यू कीजिए पीवाईक्यू कीजिए, वैसे केस स्टडी में भी सेम फिलोसफी की केस स्टडीज आती है. तो अगर आपने पीवाईक्यूज किया है, उसको एनालाइज किया है, आपने जितने ज्यादा आंसर्स लिखे हैं, तो केस स्टडी बिकम्स इजियर फॉर यू. Can you give some small example? कोई छोटा example दे सकते हैं, like what real life example that you have quoted in exam and it worked in your favor? कोई भी एक real life. जैसे मुकुंद की तरह मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं आई ऑलवेज कोट क्रिकेट एग्जांपल्स इन माय एसे एंड एथिक्स. जैसे मैं MS धोनी को बहुत ज्यादा कोट करता हूँ. मेरे एथिक्स के पेपर में कम से कम 2 बार MS धोनी आया होगा, और मेरा ऐसे का जो इंट्रोडक्शन था एक ऐसे वाला, उसमें भी मैंने क्रिकेट का एनेक्डोट लिखे ही स्टार्ट किया था. तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. मैंने अपना कॉलेज लाइफ, मैंने अपना एनजीओ में वर्क किया था इन माय कॉलेज डेज, सो आई रोट दैट एग्जाम्पल्स इन एम्पैथी एंड कंपैशन. तो आप इस तरीके से चीजों को लिखे, rather than just mentioning about गांधी जी एंड अम्बेडकर जी एंड विवेकानंद जी, एवरीबडी इज राइटिंग दोस एग्जाम्पल्स. हैड टू बी समथिंग डिफरेंट. जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, वहां से आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए एंड देन कोट देम इन योर एथिक्स एंड ऐसे पेपर. दैट विल सर्टेनली गिव एन एज टू यू रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स. I think very rightly summarized. I have written here as well that this is the only paper which allowed you to be yourself. यस And सर, यस definitely सर. quoting Mahendra Singh Dhoni, who is now becoming a legend in itself. मतलब धोनी तो धोनी है, और यस उनको सर. quote करना definitely there is big advantage.
और पहले बच्चे जो सोचते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल ब्यूरोक्रेट को या कुछ लीडर्स को, लेकिन हाँ he made something very remarkable here, that those people who are not in the field of education in the sports, they're also contributing in the leadership roles. So यस that's a सर very good example. Jatin, thank you for enlightening. यस सर uh, मुकुंद, आपसे मेरा सवाल है कि पेपर 2 में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या हर क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट करने हैं या जहां पे रिक्वायरमेंट है. Do you think like quoting the articles when there is any constitutional body's question, suppose there is a question on National Commission for Backward Class, so do we need to quote 338 capital B, or if we don't quote, we get any disadvantage? Like, what do you think? सर टू बी ऑनेस्ट इस बार तो मेरे GS2 में मार्क्स कम ही हो गए थे पिछली बार से। तो बट इन जनरल मेरे ठीक ही रहता था GS2 में स्कोर। एंड जैसा आपने कहा, मैं ये एडवाइस फॉलो करता था कि आर्टिकल्स इंट्रोडक्शन में कोट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंट्रोडक्शन में कोट कर दिया, एग्जाम्पल्स में कोट कर दिया। तो अगेन डेफिनेटिवली ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता, और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें हमारी चेक्ड कॉपीज वापस नहीं मिलती हैं, हमें फीडबैक नहीं मिलता है कि हमने क्या सही किया है क्या गलत किया। ये सब तो एक रफ एस्टिमेट जो है हम सब बैठ के लगाते हैं कि ये चीज शायद वर्क कर रही है, ये चीज शायद वर्क नहीं कर रही है। बट इन जनरल मेरे GS2 में क्योंकि मार्क्स इस साल को छोड़ के हमेशा ठीक ही रहे हैं, आई वुड से कि ये दोनों चीजें जो हैं काफी हेल्प करती हैं, और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बेंचमार्क मिल जाता है कि ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जीएस में इन जनरल सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और वर्ड स्पेस कैसे मैनेज करनी है। तो जब आपके पास एक क्लियर कट आइडिया है कि मुझे इंट्रोडक्शन में आर्टिकल पुट करना है या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पुट करना है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा उतना। अगर आपके पास ये आइडिया बिल्कुल ही ना हो तो आपको हर क्वेश्चन के लिए एक टेम्पलेट सोचनी पड़ेगी कि मैं इंट्रो में क्या लिखूं, मैं बॉडी में क्या लिखूं। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो GS2 में जैसे आपने कहा, मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं ये दोनों चीजें कोट करूंगा। GS3 में मैंने सोच के रखा था कि मैं डेटा पॉइंट्स पे फोकस ज्यादा करूंगा। GS4 में जैसे जतिन जी ने कहा, मैं एग्जाम्पल्स पे फोकस करूंगा। तो हर पेपर की एक टेम्पलेट बनाने से आपका टाइम बचता है और आपके जल्दी आप कम शब्दों में ज्यादा कह पाते हैं। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन जतिन आपसे पूछता हूं मैं कि when we deal with the questions related to IR, like this year we had a question on Sri Lanka, the economic crisis which happened, and what would it impact India, or any global grouping like I2, U2, something like that. अगर ऐसा कुछ आता है या क्वाड पे कोई क्वेश्चन आता है, so do you suggest Jatin that students should make map will help them leverage more marks, और कुछ प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है, या केवल मतलब इट गोज फ्रॉम पीपल टू पीपल, कोई बिल्कुल पैराग्राफ में लिखते हैं? तो आपका क्या सजेशन होना चाहिए कि व्हेन अ स्टूडेंट इज डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ आईआर? ये सब प्रेजेंटेशन सर्टेनली हेल्प, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। अब सपोज इज अ 10 मार्क का क्वेश्चन, देयर आर 3 or 4 पार्ट्स टू इट, you have only 2 pages to write, then you can't afford to make just a map of India and SAARC countries and just define them, because it consumes a space also. The advice to use map and diagram is to आपको टाइम बचाना है, आपको कम जगह में कम शब्दों में अपनी चीज कहनी है। लेकिन अगर वो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है, रादर देन ड्राइंग जस्ट अ मैप, यू कैन राइट दोस कंट्रीज इन वन लाइन, दैट सेव्स योर स्पेस। बिकॉज अगर 3 सब पार्ट्स है क्वेश्चन के, तो आपको जगह चाहिए, 2 पेज के अलावा यूपीएससी नहीं देता वहां पे आपको। So main thing is attending to the demand of the question, addressing all the subparts of the question, and yes, if you can manage कर सकते हैं तो आप मैप बनाइए, कंस्ट्रक्ट यूज कीजिए। कोई भी डायग्राम या प्रेजेंटेशन वो होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ऐड करे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैप मेकिंग, अगर I2 U2 आ गया, आपने 4 कंट्रीज बता दी, इंडिया, USA, इसराइल एंड ये, तो वो उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। बिकॉज उसमें आप ये बताइए कि इंडिया से यूएस को क्या फायदा मिल रहा है, यूएस से इंडिया को क्या फायदा मिल रहा है, उस डायग्राम में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, तो फिर वो जाके वो इनहेंसमेंट हो पाएगा। तो जस्ट फॉर द सेकिंग ऑफ डायग्राम मत बनाइए, लेकिन अगर वैल्यू ऐड कर रहे हो आप क्वेश्चन में, जरूर बनाइए। Now, I want to ask one more thing, like it is also related to mains, that facts and figures, there are so many facts and figures. So, do you make any data chart, like if any question comes to internal security, then I'll use the Ministry of Home Affairs data, or you do not rely on data? Like, what was your strategy on No, respect to data yes quoting? sir, data is very important, and as Mukund जी said कि हर पेपर का टेम्पलेट अलग होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। तो मैंने एक कॉमन डायरी बनाई हुई थी, वो चारों GS के सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। जैसे GS2 में, जैसे अपन ने डिस्कस किया कि आर्टिकल्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप ना जब आप पूरा पढ़ते हो तब आप चीजों को याद नहीं कर पाते, लेकिन आपने एक जगह लाइन से लिखे होंगे, आपने 15-20 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट, आपके पास लाइन से लिखे हैं 15-20 आर्टिकल्स। तो जल्दी जल्दी आप डेली की डेली उसको हाफ एन आवर 1 आवर देंगे, रिवाइज करेंगे, तो इनबिल्ट हो जाता है आपके अंदर, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता एग्जाम में कि एनसीपी। आएगा तो अपने आप आपके पास वो चीजें आ जाएंगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। सिमिलरली इन जीएस थ्री इज ऑल अबाउट दिस थिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जितना ज्यादा डेटा कोट करेंगे, जितना ज्यादा कमिटीज को कोट करेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें होंगी। द मेन पर्पस ऑफ कोटिंग डेटा इन फैक्ट इज टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर्स। I think now I want to move this little forward and taking to Mukund. Mukund, like essay is a paper which is again very important and neglected. It is like fundamental duties. It is very important for us and it is most neglected, said by the Honorable Supreme Court Judge, Mr. Ramanna. So I wanted to ask you that what should one do to get good marks in essay? Like writing multiple essays is important, or like whatever knowledge you have acquired through your GS 1, 2, 3, 4, you will capitalize that knowledge and put it there. So essay worked in your favor. Like what was your take regarding writing the essays? जी सर, मैंने टोटल 3 मेंस लिखे हैं। मेरे पहले दोनों मेंस में स्कोर 120 और 121 था, तो आई फेल्ट कि आई वाज काइंड ऑफ स्टक, ना बहुत ज्यादा आ रहे थे ना बहुत कम। तो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट 5-10 नंबर उसमें से बढ़े। इस टाइम मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया राइटिंग का। जनरली मैं अनुदीप दुरीशेट्टी सर का पैटर्न फॉलो करता था। वो बहुत ही क्रिस्प सब हेडिंग्स बनाते थे, 3 या 4 सब हेडिंग्स में वो डिवाइड करते थे अपने ऐसे को, उस हिसाब से लिखते थे। तो वो मेरे लिए उतना वर्क नहीं कर रहा था। तो तीसरे ऐसे में मैंने सोचा कि उतना मैकेनिकल अप्रोच ना रख के एक सिंपल लिटरेरी फ्लो में मेंटेन करूं और अपने दिल की बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक एसे इज वन पेपर वे यू कैन एक्चुअली एंजॉय वाइल राइटिंग। जीएस में तो ये है कि आपको टेम्पलेट है, 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन 2 लाइन का लिखना है, बहुत मैकेनिकल हो जाता है। बट ऐसे इज समथिंग दैट यू कैन राइट फ्रीली। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा था। बाकी पैटर्न ये था कि पहले मैं एक एनेक्डोट लिखता था। अगेन कोई जरूरी नहीं कि सब ऐसा लिखे, सब ऐसा शुरू करें, बट इन जनरल मैंने देखा है काफी टॉपर्स एनेक्डोट से शुरू करते हैं। एनेक्डोट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो आप जनरली एथिक्स के लिए तैयार करते हैं एग्जाम्पल्स, आप वही ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बुद्ध जी का यूज किया था एग्जाम्पल एक ऐसे में इस बार। और एनेक्डोट से फिर आप कनेक्ट करते हुए उसको ऐसे की थीम से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना लगे कि रेलेवेंट एनेक्डोट आपने लिखा है। उसके बाद धीरे धीरे आप बॉडी पे आए, और उसके बाद एक क्रिटिक भी लिखना जरूरी होता है। बिकॉज आप सिर्फ अगर एक ही व्यू पॉइंट लिखें पूरे ऐसे में तो इट कैन बिकम स्लाइटली मोनोटोनस। तो वहां पे इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्विच करें टू द काउंटर पॉइंट। बट अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि काउंटर पॉइंट बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक वाज लैकिंग इन माय फर्स्ट 2 एसेज। पहले मैं डिवाइड करके ये रखता था कि 4 या 5 पेज जो ऐसे के बारे में है वो लिखा, उसके बाद काउंटर भी 4 या 5 पेज का लिख दिया, जो कि वाज नॉट वर्किंग इन माय फेवर। तो इस बार मैंने काउंटर पॉइंट लिमिटेड लिखा, कंक्लूजन भी लिमिटेड लिखा, बॉडी पे अच्छा इलेबोरेट किया, एंड लकीली इट वर्क वेल फॉर मी। बाकी इंटरेस्टिंगली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर इन ऐसे दिस टाइम। मेरा 129 है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 10 एक नंबर कम हो जाएंगे। द रीजन बीइंग कि सेकेंड ऐसे में मेरे टाइम बहुत कम बचा था, और मेरे दिमाग में आ गया था कंक्लूजन कि इस ऐसे का कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो मैंने 2 पेज बीच के छोड़े और मैंने सीधे कंक्लूजन लिखना शुरू किया, विच इज आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन टू डू दैट, बिकॉज ऐसे a lot depends on the flow while Flow. you're writing essay, right? आप जीएस में ये सब कर सकते हैं कि आप 2 क्वेश्चन स्किप करके तीसरा कर लें, ऐसे में ये कभी नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि 10 ही मिनट बचे थे, मैंने सोचा कंक्लूजन तो मैं लिख ही दूंगा फटाफट, तो मैंने कर दिया। फिर देखा तो घड़ी में 5 ही मिनट बचे, अब 2 पेज मुझे बीच के भरने हैं। तो वो उसके बाद मुझे लगा था कि वो ऐसे का फ्लो बिगड़ गया है, तो मे बी ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बट लकीली 129 मिले, तो आई थिंक जो चीजें मैंने की कि फ्लो पे फोकस करें, ज्यादा मैकेनिकल ना हो, वो वर्क करता है ऐसे में। जोखिम उठाया आपने काफी। जी, जोखिम ये उठाया काफी। you said very correctly that essay is one area where there is no limit imposed by the UPSC, that you can write in the flow, with the flow, आप सब उसमें कर सकते हैं। ऐसे में एक I have encountered the problem with the students interacting me.
Like during my time, it was only one essay. Your time, they're asking two, part A and B. So it's a very quick and simple question to Jatin. That Jatin, what should be the criteria on choosing the essay? One should pick up easiest or the most toughest. क्या approach रहनी चाहिए? Ideal approach, if I ask you. सर आइडियल अप्रोच तो वही होना चाहिए जो ऐसे का टॉपिक आपके दिल के करीब हो, जिसमें आप खुल के लिख सकते हो, आप वो लिखिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला लिखना है, या जो लोग कम लोग ऐसे लिखेंगे वो लिखना है। इफ यू थिंक दिस, आपके पास इसमें कंटेंट है, आप इसके बारे में एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। आप जो अपन पीछे स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं ऐसे की, आप डिसाइड कीजिए कि इसके ऊपर आप 12-13 पेज अच्छे से इंटरेस्टिंगली लिख सकते हैं या नहीं। अगर आप इन्वायरमेंट रिलेटेड ऐसे में कंफर्टेबल नहीं है तो जबरदस्ती आप फॉरेस्ट है वो वाला टॉपिक मत चूज कीजिए, ताकि आपको सिर्फ लिखना के लिए लिखें। वही बात बोली जैसे मुकुंद जी बोली, अगर आप इमोशंस के साथ और एकदम एग्जाम्पल्स के साथ फील के साथ ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो एकदम मैकेनिकल ऐसे हो जाएगा, सामने वाले को पढ़ने में एंगेजिंग नहीं लगेगा। लेकिन कोई टॉपिक अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ यार मैं इसको बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, तो आप वो वाला टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, ताकि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। चाहे वो बहुत इजीएस्ट टॉपिक हो, अगर आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक चूज करेंगे कि इसमें कम लोग लिखेंगे तो मैं लिखता हूँ, तो आप ब्लंडर कर देंगे। तो इट मे बी अ डबल एज फॉर, लेकिन आप कंफर्टेबल टॉपिक लिखेंगे तो आपके फेवर में ही जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। Win-win situation है वहां पर, I think. यस सर। Now, moving to the very important life partner of UPSC's CSE, that is your optional. What should be the right approach to pick up the option to which you want to go ahead? Because someone very rightly said that a journey of 1,000 miles start with the first step. So first step is the optional. तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जतिन एक एस्पिरेंट को ऑप्शनल से सीरियसनेस दिखाने के लिए? सर जैसे सबसे पहले आपने बोला था कि ऑप्शनल इज अ लाइफ पार्टनर इन यूपीएससी जर्नी। तो अब लाइफ पार्टनर क्या सेलेक्ट करोगे? जिसके साथ आप कंपेटेबल रहो और जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। ऑप्शनल आपके लिए कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर आपको उसको पढ़ने में बर्डन आ रहा है कि यार ये ऑप्शनल है, मेरे को इतना पढ़ना है करना है, तो फिर आप उस ऑप्शन को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऑप्शनल को इंजॉय नहीं किया, आपने ऑप्शनल का डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं की, जीएस पर सुपरफिशियल नॉलेज काम कर जाता है कि आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया, 4 पॉइंटर्स बना लिए, सेम 4 पॉइंटर्स होते हैं हर आंसर में, आपने एग्जाम्पल लिखा, काम हो गया। बट ऑप्शन रिक्वायर्स डीप डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें। तो उसके लिए आपको टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, पढ़ना भी पड़ता है। तो ऑप्शनल आप वो सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सेकेंडली, जो थोड़ा सा इसका रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। मार्केट में अगर किसी ऑप्शनल का रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई कॉन्क्रीट सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा, इधर भागने लगा कि बुक से थोड़ा सा किया, उधर से किया, तो आपका टाइम बहुत इन्वेस्ट होगा। और फिर उसमें क्या होता है, अपना जीएस कॉम्प्रोमाइज होता है, तो अपन को जीएस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऑप्शन को भी साथ में लेके चलना है। तो आप उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म में पढ़ सको। बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी हो ही जाएगा। तो इट मे टेक अ लॉन्ग जर्नी, ऑल्सो 2 अटेम्प्ट, तो मिनिमम 3 और 4 ईयर्स आपको वो ऑप्शन सेम सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। सेकेंडली, उसका स्कोरिंग पैटर्न हम देखिए पीवाईक्यू से कि बहुत ज्यादा ब्लंडर तो नहीं हो रहा है स्कोर, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें लास्ट 5-6 ईयर्स में यूपीएससी इज नॉट गिविंग दैट सच मार्क्स। तो मिनिमम एवरेज 250 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। और आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसमें यूपीएससी स्कोर नहीं दे रहा है तो आपको भी स्कोर नंबर नहीं आएगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पीवाईक्यूज पे एनालाइज कीजिए, और उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन की करेक्ट स्ट्रेटेजी करेंगे तो वो हेल्प करता है। Rightly. Now I want to move towards the last leg of the preparation, which is interviews. इंटरव्यूज के लिए बच्चों को लगता है कि सिलेबस नहीं है, सिलेबस भी दिया हुआ इंटरव्यू का कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, आप चीजों को, इश्यूज को समझते हो इंडिया के। तो मैं ये आपसे पर्सनलाइज क्वेश्चन है कि इंटरव्यू का दिन कैसा रहा आपका? हाउ इट स्टार्टेड? फर्स्ट आई स्टार्ट विद जतिन, देन मूव टू मुकुंद। कैसा रहा आपका सुबह का दिन जब आपका दिन था इंटरव्यू का? इंटरव्यू वाला दिन बहुत बहुत ही मतलब अमेजिंग रहा। मतलब पहले इतना ज्यादा नर्वसनेस थी, सारी चीजें थी, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, फर्स्ट टाइम वी वुड बी फेसिंग सच इंटेलेक्चुअल पीपल्स देयर। तो आई वाज वेरी नर्वस, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट आल्सो। एंड कॉन्फिडेंटली ये था सर, जब मैंने खान सर से बात किया था, खान सर केजी में मॉक इंटरव्यू दिया था, खान सर ने बहुत लेबोरेटरी, मतलब मेरे को पहले टाइम पता चला था कि इंटरव्यू का सिलेबस भी है। खान सर पॉइंटेड आउट टू मी एंड द मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन मी। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में, तो वो कॉन्फिडेंस दिया। और मेरे इंटरव्यू के एक दिन पहले खान सर का वॉइस नोट भी आया था ऑल द बेस्ट विश करने के लिए। उन्होंने सारी मेरी स्ट्रेंथ्स को रिकलेक्ट करवाया था मेरे को, तो उससे कॉन्फिडेंट था कि हाँ काफी बढ़िया है। तो बहुत ही अमेजिंग दिन था वो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया था। नर्वस एंग्जाइटी तो थी,
और सत्यवती मैम का बोर्ड था मेरा, तो ओवरऑल द इंटरव्यू गुड फाइन, मतलब काफी अच्छा हुआ था इंटरव्यू, मतलब फील गुड फैक्टर हो रहा था इंटरव्यू देने के बाद, तो अच्छा रहा। Can you share any moment of the interview where you thought like कि ये क्वेश्चन रेंज से बाहर जा रहा है, ये बाउंसर है, और एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा कि मैंने MS धोनी की तरह 2011 वाला वर्ल्ड कप का छक्का मार दिया, समथिंग लाइक दैट? तो सर वो तो ऐसा था कि मेरे मेरे आई एम फ्रॉम इंजीनियर हूँ मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आई हैव मेंशन्ड समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन माय डेव। तो और उसी अराउंड विद इन एक महीने पहले चैट जीपीटी वाज सराउंडिंग ऑल ओवर द न्यूज। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन चैट जीपीटी, और इन एवरी मॉक्स आई वाज गेटिंग दैट क्वेश्चन, सो आई प्रिपेयर्ड इट वेरी गुड। तो चेयरपर्सन का पहला क्वेश्चन ये था अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी, तो मैं तो बोला हाँ ये अपना यॉकर आ गया, इसमें 6 मारना है। तो आई गेव अ वेरी फैंटास्टिक आंसर, शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड, तो मतलब माहौल अच्छा से सेट हो गया था पहले क्वेश्चन में। और बाउंसर वाला क्वेश्चन तो ऐसा था सर, सडनली वन फीमेल मेंबर आस्क्ड मी अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस की तुम्हें घूमने जाना है तो कहाँ कहाँ घूमने जाओगे इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। So I mentioned few places here and there, but I forgot to mention some places of South India, and she was from Kerala. So she get little bit offended कि you don't like South India, you don't want to visit South India. तो थोड़ा सा वहां पे ऐसा माहौल हो गया था। Then I smilingly said नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, I would love to go anywhere. So but I forgot to name some places. तो ऐसा करके हुआ, तो मेरे को लगा वहाँ थोड़ा सा मेरे मार्क्स कटे होंगे, थोड़ा सा नेगेटिव भी गया होगा। तो बट हाँ ओवरऑल अच्छा था। Maybe. Mukund, when I met you, you said like आप जब interview देने जा रहे थे, you were listening some music, and when you were entering the premises, you last heard Dr. Khan. So, what tangible advices Dr. Khan gave you about your strength? Can you share that, and will it help you there in the interview? उसने मदद किया था आपको क्या वहां पर, वो जो एडवाइसेस थी उसने? जी सर। जैसा जतिन जी ने कहा, खान सर वॉइस नोट भेजते हैं एक दिन पहले जनरली कैंडिडेट के इंटरव्यू से। तो अगेन मैंने उसे बार बार क्यों सुना, या और स्पेशली जाने से पहले क्यों सुना, उसका रीजन ये था कि फर्स्ट आई रियलाइज कि ये ऑटोमेटेड वॉइस नोट नहीं है, ये पर्सनलाइज्ड वॉइस नोट है। क्योंकि उन्होंने मेरा 1-to-1 जो लिया था उसके पॉइंटर्स उन्होंने मेंशन किए कि आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी, विच इंडिकेट्स कि ऐसा नहीं है कि वॉइस नोट सबको एक जैसा ही गया है। ये वॉइस नोट मेरे लिए अलग से बनाया गया है। और एक यूपीएससी वेटरन जब मेरे लिए एक पर्सनलाइज्ड नोट बना रहा है जिसमें वो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो दैट ऑब्वियसली बूस्ट योर मोरल। तो ये मेन फैक्टर था। बाकी अगेन उन्होंने ये कहा था कि बी योर सेल्फ, यू आर डूइंग गुड। एंड स्पेशली क्योंकि मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू स्कोर 135 था, तो वो इस बात से बहुत शॉक थे कि इतना कम क्यों है। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एटलीस्ट किसी को ऐसा लग रहा है कि आई डिडंट डिजर्व 135 लास्ट ईयर। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने उनके फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया और खुद की मोरल को बूस्ट करने के लिए यूज किया। जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, you got any question from Bhopal or any specific easy full toss for you? सर वो एक्चुअली यॉर्कर बन सकती थी, पर लकीली मैं 2 कदम आगे था तो फुल टॉस बन गई। क्वेश्चन था कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत का मतलब क्या है। तो वो लकीली मैंने डैप प्रिपरेशन में कवर किया हुआ था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। और जो मेंबर थे वो काफी खुश भी लग रहे थे। Okay, okay, okay. So now I want to wrap it up this interview, and just quick advice from both of you to the future aspirants कि एक अगर मैं nutshell में आपको एक एक लाइन में अपनी एडवाइस देना पड़े कि this is the मुकुंद सिंह चाहर's advice and this is जतिन जैन's advice to the future aspirant. सर अगर मुझे एडवाइस देनी हो तो सर मेरी जर्नी काफी लंबी रही है, 6 साल की। और मैंने मेहनत की है, मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे लिए पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। मैंने यही सोचा था कि मैं अटेम्प्ट सारे दूंगा। और आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एम लाइक अ बॉक्सर हु इज गेटिंग नॉक डाउन एवरी टाइम, बट आई समहाउ जस्ट डस्ट माई सेल्फ अप एंड जस्ट गेट अप। कि एटलीस्ट 6 बार तो मुक्के खाने ही, मुझे 6 अटेम्प्ट मेरे पास थे। अगर मैं जेल जाता हूँ तो आई गो अहेड। और रॉकी का एक मोनोलॉग है, इट इजंट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, हाउ हार्ड you can hit, it's about how hard you can get it and keep moving forward. Because it means कि life आपको punch down करेगी, but your job is to just get up and keep moving. तो यही मेरी फिलोसफी थी और यही एडवाइस मैं सबको दूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखें और बिलीव रखें कि आपका दिन आएगा। Very amazing and sporty advice. जतिन, आप क्या यस सजेस्ट करेंगे?
सर सेम थिंग वही रहेगी कि ये जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका पेशेंस का। और जैसे मैं MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है हमेशा से, कि आप प्रोसेस जो है प्रोसेस को फॉलो कीजिए। रिजल्ट कभी आपके फेवर में होगा, कभी आपके फेवर में नहीं होगा। जीत और हार मतलब दो पहलू हैं। जैसे मुकुंद ने कहा कि पिछली बार वो इंटरव्यू में वो कम स्कोर पाए, तो मेंस अच्छा रहा लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जब तक आपके सारे किस्मत साथ नहीं देगी, आपकी मेहनत में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा अल्टीमेटली। लेकिन आप अपने प्रोसेस पे बने रहिए, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं आप सही डायरेक्शन में करते रहिए, तो सक्सेस कभी ना कभी आपको मिलेगी। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। सामने वाला कोई कितना भी कह ले, आपके दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, यस दे आर देयर फॉर सपोर्टिंग यू, लेकिन अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इस जर्नी में लास्ट करना। तो सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड थिर्डली इज कंसिस्टेंसी। पेशेंस के साथ जैसे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको दिन, लोग बोलते हैं दिन में 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, नहीं आप सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ेंगे ना, लेकिन पूरे महीने भर पढ़ेंगे 4 घंटे, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा rather than आप 10 घंटे पढ़ेंगे महीने में 10 दिन। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना एफर्ट्स लगाते जाइए और सेल्फ बिलीफ रखिए। बाकी तो फिर मेहनत करेंगे तो वही है कि अगर आप मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते हैं तो किस्मत भी आपका हाथ नहीं छोड़ती है। तो मेहनत करते जाइए, किस्मत जरूर साथ देगी और आप लिस्ट में आएंगे। वेरी गुड लाइन, इट इंस्पायर्ड मी इवन। जब आप मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते तो किस्मत आपका किस्मत साथ नहीं आपका हाथ नहीं छोड़ती है। छोड़ती है। यस सर। इट्स अ वेरी गुड लाइन। और इसी के साथ आई वांट टू एंड, बट एक चीज जो जतिन ने पॉइंट आउट की है वो ये है, आई थिंक कि यू पीपल जनरली, जो धोनी की भी एडवाइस रहती है कि पीपल जनरली लुक ओनली फॉर द रिजल्ट डेट, यस कि सर। उस दिन रिजल्ट आएगा तब मेरा नाम PDF में आएगा, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड लाइफ विल बी ब्लिसफुल एंड ऑल दैट। But I think this journey of the UPSC is so beautiful that it make you aware with the history, geography, polity, geostrategic and what not. So ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। So since जतिन ने एक बात बोली है तो मैं भी उससे एंड करता हूँ कि जो घर से निकल गए उन्हें मंजिलें मिल गई, बाकी कुछ लोग रास्ते की मुश्किलों पे मशवरा करते हुए रह गए। तो घर से निकलिए, कोशिश कीजिए एंड फाइट वेल। Thank you so much. God bless you both. And I'm very glad that country is getting very humble and very principled officers in different services. God bless you all. और हम मिलते हैं फिर कभी दोबारा। यस, Thank you. थैंक Bye यू, bye. थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच सर। थैंक यू सो मच सर।